السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پڑھایا تھا، یہ تو تختی نمبر 10 اخفاء ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اظہار کا قاعدہ۔ یہ دیکھیے تختی نمبر 9 ہے، اس کو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا۔ یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا، اور اس میں جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تختی نمبر 10 ہے اور اخفاء ہے، یہ بھی تنوین اور نون ساکن کا ہے قاعدہ، لیکن یہ قاعدہ نمبر 2 ہے نا۔ اس طریقے سے قاعدہ نمبر 1 پڑھیں، قاعدہ نمبر 2 پڑھیں گے، ابھی پھر قاعدہ نمبر 3، پھر 4 پڑھیں گے۔ 4 قاعدہ تنوین اور نون ساکن کا ہے، چاروں کو باری باری سے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے حروف اخفاء 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ دیکھیے حروف اور یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو یعنی ان 15 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا نا، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ آوے تو اگر 15 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی نوک زبان تالو سے ہٹا کر۔ یہ جو ہے آپ مت یاد کیجیے گا یا اتنا چھوڑ دیجیے گا۔ آگے دیکھیے جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، یہ مطلب نوک لگانا ہے تالو میں، وہ زبان کی نوک کو وہ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، یہاں دیکھیے اخفاء کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ دیکھیے اس قاعدے کو ہم نے بورڈ پر بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو دیکھیے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو آپ کو اس کو سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا، اس لیے کہ ہم نے اس میں ہی بہت اچھی طریقے سے بتایا ہے۔ یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہے نا، چھپا کر کے پڑھنے کو اخفاء کہتے ہیں۔ اور حروف اخفاء 15 یعنی کہ چھپا کر اس کی آواز کو چھپا کر پڑھنے والے حروف 15 ہیں۔ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنے والے حروف کتنے ہیں؟ 15۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد ان 15 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ان کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اور 1 الف کے برابر چھپا کر کے پڑھیں گے۔ وہ ابھی دیکھیے آپ دیکھ لیجئے گا، سمجھ جائیں گے خود ہی آپ۔ یہ ہے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، تا، میم نون پیش مو، ذال زیر ذی، موذی، را پیش رو، منذرو، انت منذر۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے نون ساکن کے بعد تا رہا ہے، یہاں بولا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، ہے نا، تو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے، پہلے پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ آگے ہے کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم الف دو زبر من کی را من، کاف الف زبر کا کی را من کا، تا زیر تی کی را من کاتی، با یا زیر بی، نون زبر نا بینا، کاتبینا کراما کاتبین۔ یہاں بولا ہے نا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، کوئی حرف آئے گا تو اسی لیے ناک میں آواز چھپا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آگے ہے کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را تو را، با الف دو زبر بن تو را بن، کن تو ترابن، یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم الف دو زبر من یتیمن، فا زبر فا یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، فا آ وا۔ یہ دیکھیے یا لکھا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے، ہے نا۔ یتیمن فا آ وا، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخ، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ۔ آگے ہے را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، کاف زبر کا، را یا زیر ری کری، میم دو زیر من کریمن، رسولین کریمن، نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذات، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن کتابن، فا یا زیر فی کتابن فی، ہاں زیر ہی کتابن فیہ۔
या वाव ज़बर यऊ आगे है। इस तरीके से अभी हम आपको और अच्छी तरीके से अभी बताएंगे, एक मरतबा पढ़ लेते हैं पहले। या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यौम, या नून पेश युन, यौम युन, फ़ा ज़बर फ़ा, यूंफ़ा, ख़ा पेश ख़ा पेश खु, यूंफ़खु, यौम यूंफ़खु, मीम नून ज़बर मन, तो ज़बर तो, मन तो, गैन खड़ा ज़बर गौ, मन तो गौ, फ़ा ता ज़बर फ़त, हा दो पेश हुन, फ़तहुन, क़ाफ़ ज़बर क़ा, रा या ज़ेर री, क़री, बा दो पेश बुन, क़रीबुन, फ़तहुन क़रीबुन, मीम नून ज़बर मन, सा ज़बर सा, मन सा, क़ाफ़ पेश कु, मन सक़ु, लाम ता ज़बर लत, मन सक़ुलत, हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़बर ज़ल, अं ज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, अं ज़ल ना, है ना। इस तरीके से आगे है शीन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़ेर इन, शई इन, क़ाफ़ ज़बर क़ा, शई इन क़ा, दाल या ज़ेर दी, रा दो पेशरुन, क़दीरुन, शई इन क़दीरुन। इस तरीके से आराम आराम से पढ़ना था। लेकिन अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो उर्दू आप लिखे हुए हैं इसमें उसकी बात। देखिए यहाँ लिखा है हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हर्फ में से कोई हर्फ है, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद यहाँ आपको बोलना है इख़फ़ा होगा। क्यों इख़फ़ा होगा? इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हर्फ में से ता आ रहा है, ये देखिए, इसलिए गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, यानी कि इख़फ़ा करके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद, यहाँ बोला ना नून साकिन के बाद 15 हर्फ में से कोई भी हर्फ आए, तो नून साकिन के बाद देखिए 15 हर्फ में से ज़ाल आ रहा है, इसीलिए पढ़ रहे थे मुंज़िरु। देखिए आगे है मीम अलिफ दो ज़बर मन है, तो यानी कि तनवीन है ना, ये दो मीम के ऊपर दो ज़बर, और दो ज़बर के बाद कौन हर्फ है? काफ है। ये अलिफ जो लिखा हुआ है इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देखिए जा करके। आगे है तो ये तनवीन के बाद काफ़ है, तो इस काफ़ को भी मतलब काफ़ आ रहा है इसमें से हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हर्फ में से, इसलिए यहाँ पे इख़फ़ा होगा और इसकी आवाज़ को नाक में एक अलिफ के बराबर छुपा करके पढ़ेंगे। देखिए कि रा मन कातिबीन, इसीलिए हो रहा है। आगे है नून साकिन के बाद ता आ रहा है, देखिए नून साकिन के बाद अगर ता आ जाए तो इख़फ़ा होगा। कितना अलिफ के बराबर इख़फ़ा होगा? तो एक अलिफ के बराबर। कहाँ पे आवाज़ को छुपाएंगे? नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे, कुंतु तुराबन। आगे है मीम, देखिए मीम के ऊपर तनवीन है, मीम नहीं बोलना यानी कि तनवीन बोलना। तनवीन के बाद कौन हर्फ है? फ़ा। कैसे पढ़ेंगे? नाक में आवाज़ को छुपा करके पढ़ेंगे। क्यों? अच्छा इख़फ़ा इसमें क्यों होगा? इसलिए कि तनवीन के बाद फ़ा रहा है तो इख़फ़ा होगा। इसी तरीके से पढ़ना है यतीमन फ़आवा, है ना। आगे देखिए नून साकिन के यहाँ पे कौन सा कायदा होगा आप बताइए? तो आपको बोलना पड़ेगा इख़फ़ा। क्यों होगा इख़फ़ा? इसलिए कि नून साकिन के बाद दाल आ रहा है ना। तो कैसे पढ़ना है? मन दख़ल, इख़फ़ा की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ना है, नून की आवाज़ को। देखिए यहाँ पे कौन सा कायदा होगा? यहाँ पे भी इख़फ़ा होगा। क्यों होगा? इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हर्फ में से काफ़ आ रहा है, तो इसके में भी कैसे पढ़ेंगे इसको? तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। इस तरीके से सब में बोलना है ना। आगे देखिए आगे है, इसमें कौन सा कायदा होगा? इसमें इख़फ़ा होगा। क्यों? इसलिए कि तनवीन के बाद ज़ाल आ रहा है ना। तनवीन के बाद ज़ाल आ रहा है इख़फ़ा के 15 हर्फ में से, ये देखिए ज़ाल, तो इसमें भी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको नून नहीं दिख रहा है, देखिए नून नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको हम इस तरीके से बता देंगे कि रा अलिफ दो ज़बर रन लिखा हुआ है, इसको अगर आप बोलना चाहें तो रा नून ज़बर रन भी बोल सकते हैं ना। ये देखिए जैसे कि जीम अलिफ दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, तो ये नून इसमें छुपा हुआ रहता है ना। देखिए दाल दो ज़र दिन, दाल नून ज़र दिन, नून छुपा हुआ रहता है, इसीलिए नाक में आवाज़ को छुपा करके पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कौन सा कायदा होगा? यहाँ पे भी इख़फ़ा होगा। क्यों होगा इख़फ़ा? इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हर्फ में से फ़ा आ रहा है, तो इसमें भी नून की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको सब में बोलना है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी इख़फ़ा होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद क़ाफ़ आ रहा है हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हर्फ में से, यहाँ देखिए ये है, तो इसलिए यहाँ पे भी इख़फ़ा होगा। इसमें भी नून की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें पढ़ना था और समझना था इसको। तो एक दो जो है हम आपको गलत पढ़ के बताएंगे, इसलिए गलत पढ़ के बताएंगे, जब तक आपको गलती नहीं मालूम होगी फिर आप सही नहीं समझ सकते हैं। तो इसको गलत पढ़िए। देखिए जैसे अंता मुनज़िरो के रामन कातिबीना कुंतो तो राबन,
यतीमन फ़आवा, इस तरीके से रसूलिन करीमिन, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर आप मान लीजिए आप इस तरह भी पढ़ते हैं, अगर अंत मुनज़िरु किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबन, देखिए यतीमन फ़आवा ये भी गलत है, और वो हम पढ़ के बताएं इससे पहले, वो तो बहुत ज़्यादा गलत है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा, आपको पढ़ना पड़ेगा अंत मुनज़िरु, अंत मुनज़िरु कहेंगे तो इजहार हो जाएगा। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, इजहार में साफ साफ पढ़ते हैं, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके, गुन्ना उन्ना नहीं करना रहता है। देखिए इसमें आपको गुन्ना करना पड़ेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, नाक में आवाज़ को छुपा करके पढ़ना है, यानी गुन्ना के साथ पढ़ना है ना। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अंत मुनज़िरु, है ना। अगर आप पढ़ेंगे किसी दूसरा ले लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा हुआ किताबुन फ़ीही, तो आप पढ़ेंगे किताबुन फ़ीही तो गलत हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ये किताबुन फ़ीही, आपको इख्फा करना पड़ेगा, है ना। तो एक मरतबा करके पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, देखिए अंत मुनज़िरु किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबन यतीमन फ़आवा, है ना। एक अलिफ के बराबर इख्फा करना पड़ेगा। मन दखलहु रसूलिन करीमिन, इसमें साथ साथ में ये कायदा तो बोलना है, पिछला कायदा भी आप समझते जाइएगा। जैसे यहाँ पे वाव मद्दा होगा, इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है, यहाँ पे इख्फा होगा, और यहाँ पे या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा। पिछला कायदा भी आप बोलते रहिए साथ साथ में। आगे है नारन ज़ात किताबुन फ़ीही यौमा युनफ़ख़ु, देखिए यौमा में कौन कायदा होगा, यौम में वाव साकिन से पहले ज़बर है, और यहाँ पे इख्फा होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद कौन हर्फ है, फ़ा है। इसी तरीके से आगे है मन तग़ा फ़त्हुन क़रीबुन मन सक़ुलत अंज़लना शैइन क़दीरुन, इस तरीके से आपको आराम आराम से पढ़ना है, हिज्जे करके पढ़िएगा तो आपको एक भी गलती नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर मतलब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसमें आप देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इस सब पिछली वीडियो को सबको देख लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।